हमारे माननीय चीफ गेस्ट अभी आ चुके हैं, पधार चुके हैं हमारे चीफ गेस्ट माननीय रीना सर जी। हेडमास्टर के साथ गार्डिंग कर रहे हैं। हम लोग ऑनर करते हैं, ऑनर करने से ऐसे गार्डिंग करके हम लोग का चीफ गेस्ट को ले जाते हैं। तो देखिए हम लोग का चीफ गेस्ट अभी ये हमारे पूरे सुंदर सुंदर लेडीज ऑफ आवर स्कूल का है। चीफ गेस्ट इज अनाउंसमेंट कुछ नहीं हो रही है। Hello. Hello. Good morning. Good morning, sir. Happy Republic Day to each and every one of you. Same to you, sir. Most respected head sir, most esteemed learned colleagues, and my dear beloved budding students. Well, before delivering my impromptu brief speech, I would like to extend my heartiest thanks to our most energetic head teacher Takisa for giving this golden opportunity to unfold our tricolor flag for the last time, because I will be superannuated in this very year, that is on 30th June 2025. फिर मुझे दोबारा फ्लैग होस्टिंग करने के लिए स्कूल में मौका नहीं मिलेगा. So really I am very thankful to our head sir, and it is a great privilege, and I think I feel it as a great honor for your kind gesture. Once again, thank you, Takisa. Coming to the main point, my dear students and learned colleagues, today we are celebrating the 76th Republic Day, marking the adoption of our Constitution on 26th January 1950. This day reminds us the sacrifices
the struggles, the visions, and the dreams of our freedom fighters and our great leaders who shaped the India which we are living today. They have sacrificed their lives for our better tomorrow, and today we are reaping it. At these very days, celebrated in every nook and corner of our country, mostly in educational institutions and government offices, with great pomp, show, and gaiety, especially at Kartavya Path. कर्तव्य पाथ को पहले राजघाट बोला करते थे, राजपाथ. It is being celebrated with great grandeur, and it is really, worth seeing. Even the nationalists, Indians who are living abroad in different parts of the world, they are also celebrating our Republic Day with great enthusiasm. So, my dear students, for your kind information, before 1950, we Indians did not celebrate Republic Day. This was because, though we got independence on 15 August 1947, but we did not have our own set of laws or constitutions. For a few years, we were governed by the old laws made by the British. That is the Government of India Act 1935 के तहत हम जो है हमारा देश को कुछ सालों से वो चला रहे थे. And now our Indian leaders, they have decided to frame the constitution of our country as soon as possible, because without having a constitution of its own, a country cannot be called as a sovereign nation. That is why a constituent assembly was formed on 6th December 1946. This constituent assembly consisted of leaders, public leaders, then great renowned lawyers, social activists, etc., etc. The most prominent among these leaders were Dr. Rajendra Prasad, Dr. B.R. Ambedkar, Vallabhbhai Patel, then Shyama Prasad Mukherjee, then Mohammad Sadullah, etc. And the lone woman member was Durgabai Deshmukh of Maharashtra. And my dear students, in this Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad was the president, and Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of the drafting committee, and the chief draftsman was N. Mukherjee. Dear students, it took 2 years and 11 months to draft and frame the constitution of our country. And a sum of rupees 64 lakhs were incurred on this process. And the assembly meet for 11 sessions. And the last session was start from 14 December to 26 December 1949. And finally, our constitution was passed and adopted on 26 December 1949, but it was enforced on 26 January 1950. आज का दिन 26 January enforced किया गया. And my dear students,
our constitution, it declares India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Sovereign means संप्रभु. हम अब किसी का अधीन में नहीं है. We are independent. We have got absolute power. We are not under the colony of any foreign, power. Sovereign. Then socialist का meaning क्या है? समाजवादी. हम हमारा ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम एवरी इंडियंस को यही चाहते हैं कि हम जो है संपन्न हो. एवरी इंडियंस जो है संपन्न हो. और गवर्नमेंट का जो रिसोर्सेज जो स्कीम्स है वो जो है आपका कुछ ही लोगों के साथ न हो, जैसे कम्युनिस्ट कंट्री में हुआ करते हैं. लेकिन हमारा देश में ऐसा नहीं है. आप का ऊपर है, आप जो भी बिजनेस जो भी व्यवसाय करना चाहे आप कर सकते हैं. यह है समाजवादी. देन सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष मीन्स जैसे पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम उसका मेन जो है नेशनल रिलीजन है. लेकिन हमारा देश इंडिया में ऐसा नहीं है. एवरी रिलीजन्स आर ट्रीटेड एज इक्वल. सब ये जो है धर्म का लोग, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन preach and profess any kind of religion of your choice. Then आपका वो डेमोक्रेटिक तो आप जानते हैं. शॉर्टेस्ट इसका डेफिनेशन है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. और इन डेमोक्रेसी में क्या होता है? The elected representatives of our country form the government. That is, स्टेट लेवल में MLAs लोग जो बाद में मिनिस्टर्स बनते हैं, अपना ये स्टेट को चलाते हैं. और सेंट्रल में जो MPs लोग. Means we the people have got the absolute power to form the government because we chose our own representatives. Then republic आज जो हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं, रिपब्लिक का मीनिंग है the head of the state. In India, the head of the state is president of India is the head of the state. So the head of the state is directly or indirectly elected by the people. जिसका एज जो है 18 years का हो गया, वो जो है उसको इलेक्शन करते हैं. और हमारा देश में इनडायरेक्टली हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट को, आपका वो जो MLAs होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, MPs होते हैं, वो जो इलेक्शन करते हैं. Now, my dear students, our constitution is the lengthiest constitution in the whole world. It has got 395 articles and 8 schedules. But now, it has been increased up to 448 articles due to 106 amendments. 106 times को amendment कर चुके हैं. इसीलिए now my dear students, I don't want to take much time of yours. आप बहुत देर तक आप ये जो है वो खड़े हुए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा मैं शॉर्टिंग करता हूँ ना. So my dear students, now our country India, it is making tremendous progress in every sector. And this sector, it may be IT sector, it may be e-commerce sectors, infrastructure development sectors, agriculture and these horticulture sectors, digitalization, but etc. और बहुत. But as we belong to the education sector, so I will focus on education. और मुझे लगता है मैं हिंदी में बोलूँगा ताकि आप लोग जो है कुछ समझें. देखो प्यारे बच्चों, किसी देश की जो तरक्की के लिए उसका नागरिक का शिक्षित होना बहुत बहुत जरूरी है. जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एक देश को the countries of the world has been categorized into 3, एक होता है अंडर डेवलप्ड, जो विकसित नहीं हुआ. दूसरा होता है
डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, और तीसरा होता है डेवलप्ड कंट्री जो विकसित हो गए। तो उसमें जब मैंने ये किया, रिसर्च किया, गूगल में देखा, तो डेवलपिंग कंट्रीज का जो लिटरेसी, कंट्री का ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है वो जो बहुत बहुत ज्यादा है। इसलिए उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इतना आपका वो प्रोडक्टिव है, इसलिए वो लोग डेवलप हो सकते। जैसे आप देखें फिनलैंड 100% लिटरेसी रेट, लग्जमबर्ग 100% लिटरेसी रेट, देन नॉर्वे 100%, इटली 99%, जर्मनी 99%, फ्रांस 99%, हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज चाइना 99.8%, जापान 99%। दीज आर द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और हम अब अपना देश में आते हैं, ओवरऑल जो ये है लिटरेसी रेट है 77.5, बहुत बहुत कम। इसलिए हम अभी डेवलप्ड कंट्री हम नहीं हुए। इसका मतलब फॉर 100 जो आदमी में 22.5 हम लेते हैं पर्सन्स, दे आर अनएजुकेटेड। अब हमारा कर्तव्य है इन सबको शिक्षित बनाना है। चलिए हम अरुणाचल में आते हैं, इंडिया का सेकेंड लिस्ट लिटरेट स्टेट। आप लोग जानते हैं फर्स्ट कौन सा है लिस्ट लिटरेट स्टेट? आप लोग जानते हैं, बोल दीजिए। बिहार, वेरी गुड। बिहार जो है लिस्ट लिटरेट है 61 पॉइंट समथिंग, और अरुणाचल जो है 65 पॉइंट समथिंग, और हमारा और एक दोस्त है वो है राजस्थान 66 पॉइंट समथिंग। हम तीनों जो है स्टेट जो है दोस्त हैं। तो देखिए, आप जो अनपढ़ होकर जो रह गए, जो शिक्षा नहीं मिला, वो बुरा हो गया। उनको हम आप शिक्षित नहीं बना सकते हैं। हाँ, ये जो एडल्ट एजुकेशन है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन उसमें नहीं दे सकते। तो उसको हम छोड़ करके अभी हमारा फोकस जो है आप में, आप सबको, जो फ्यूचर सिटीजन ऑफ द कंट्री कौन है? आप। इसलिए वी द टीचर्स आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गिव यू क्वालिटी एजुकेशन। सब टीचर्स वही करते हैं। अभी आपका ड्यूटी है पढ़ाई में, लिखाई में आपको क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। ये लाइफ जो है हमारा, इट इज नाउअडेज, इट इज द एज ऑफ कंपटीशन। यू शैल हैव टू बिकम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तभी आप जो है आगे जा सकेंगे। ऐसा नहीं हो के जैसे तैसे करके जाएंगे, आई एम अफ्रेड कि आप भी एक एरे गिरे बन के रह जाएंगे। इसीलिए आज का दिन से ही आप जो है प्लेस कीजिए, प्रॉमिस कीजिए, आप लगन से, आप मेहनत करके, दृढ़ता के साथ आप जो है पढ़ाई करेंगे, उसमें अनुशासित होना तो बहुत बहुत लाजमी है। ऐसा करके आप आगे जाइए। और जैसे हम अभी बोल रहे हैं, जिसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर एंड सो मेनी ग्रेट लीडर्स, मैंने नाम उनका लिया, आप भी उनका जैसा हो सकते हैं। उसके लिए आपको सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, देयर इज नो शॉर्टकट माय डियर स्टूडेंट्स। शॉर्टकट नहीं है। एंड यू नो इंडस्ट्री इज द की टू सक्सेस। इंडस्ट्री मीन्स यहाँ मेहनत। एक आपका वो चाबी, ताला को खोलने के लिए क्या चाहिए? चाबी चाहिए। इनमें से वो सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करना है। यही इस प्रभाव का तात्पर्य है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इस साल का जो दिस ईयर्स रिपब्लिक डे थीम इज स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इट मीन्स गोल्डन इंडिया, विरासत मीन्स हेरिटेज। हेरिटेज मालूम है, जैसे कि ताजमहल हमारा हेरिटेज है, अजंता एंड एलोरा केव्स हमारा हेरिटेज है, सान टेम्पल जो कोणार्क में वो जो हमारा हेरिटेज है, आगरा पोर्ट है, रेड पोर्ट है, दीज आर आवर हेरिटेज।
एंड विकास का मीनिंग आप जानते हैं प्रोग्रेस। इस साल का जो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है स्वर्णिम भारत। वंस अपॉन ए टाइम इंडिया वाज नोन एज सोने की चिड़ियों की देश। आप जानते हैं ना, ये जो है मौर्य का पीरियड में, जहां मौर्य, आप चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, बिंबिसारा को आप जो पढ़ते होंगे, अजातशत्रु को पढ़ते होंगे। तो जो मौर्य पीरियड का सबसे फेमस राजा कौन थे? महाराजा अशोक। उसका ये समय में, और मुगल का समय में, जो शाहजहां का समय में, तो सोने की चिड़ियों की ये जो देश कहा जाता था, क्योंकि इंडिया जो पूरा का पूरा संपन्न था, कोई गरीब उसमें था ही नहीं। यहाँ तक भी कहते थे इंडिया का जो देश में जो चिड़िया उड़ते हैं वो भी सोने का है, ऐसा बोला जाता, तुलना ये जो है किया जाता है। तो इस बार का यही है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सो लास्टली माय डियर स्टूडेंट्स, let's take place on this auspicious day to uphold the values and sanctity of our Constitution and contribute to the progress of our nation and strive to maintain unity in diversity, respecting our heritage and treating all our fellow citizens with dignity and respect and equality. So before you now concluding my speech, I will chant 3 times भारत माता की, और आप सब जो है जय जो एकदम मुट्ठी ऐसे करके जोश के साथ आप लोग जो है जय बोलिएगा 3 टाइम्स। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और देखिए आज मुझे हेडसा जो है चीफ गेस्ट बनाया गया है। तो मैं कल अपना गांव गया था, हम लोग का एक ये था, तो इसलिए मिठाई आप लोग के लिए लेना भूल गया है। हाँ, ये मेरा उधार रहेगा आप लोग के लिए मिठाई। आज मेरा तरफ से नहीं है, सार की तरफ से होंगे, दूसरी बार आप लोग को दिया जाएगा। एंड विद दिस आई conclude my speech. Thank you all and may God bless you all. Yes. ऐसे करा रहो, ऐसे करा रहेगा। हाँ, तो वे मिठाई मिलेगा, नहीं तो मिठाई नहीं मिलेगा। क्या 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 अटेंडेंस भी आप लोगों का यहीं पे होगा। लाइन ऐसे करा करो। हाँ, मिठाई भी मिलेंगे और ये करेंगे। तो वंस अगेन मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा हमारे सीडीएस जो स्पीच दे चुके हैं। अभी इसी तरह से हमारा नेशनल फ्लैग भी अनफोल्ड हो चुके हैं, होस्टेड हो चुके हैं। तो हम लोग अभी विसर्जन होंगे, प्रोग्राम संपन्न हो गया है। तो वंस अगेन आप सभी को शुभ स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, हैप्पी रिपब्लिक डे। बाय बाय।